Very good morning, 10th class. How are you all? Safe and fine at homes? Doing your studies regularly? Children, do study regularly. These are very important times. अभी आपको घर पे टाइम मिल रहा है पढ़ने का, तो ध्यान से सारे लेसन्स अपने पढ़ो ताकि एग्ज़ाम टाइम में कोई दिक्कत ना आए. डोंट थिंक कि आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे. बोर्ड एग्ज़ाम्स यू विल बी गिविंग इन मार्च. सो अभी से ही अगर अपने चैप्टर्स ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो तब कोई दिक्कत नहीं आएगी. राइट? सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर लेसन. Just a small recap. In yesterday's lesson, we have learnt about the revolt of weavers in the Cilician region. Why they revolted? Because they were very angry with their contractors. There was so much of unemployment, their wages were reduced, and so on. We have done in detail in yesterday's lesson. That was one revolt of weavers. Same type of revolts were going on in different regions. Different problems, different regions. So let's continue the today's topic. What changes happened further? 1848, the revolution of the liberals. एक तरफ तो वर्कर्स का, पीजेंट्स का, वीवर्स के रिवोल्ट चल रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, देखो वो इकोनॉमिक रीजन से हो सकते थे, वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से थे, वो पॉवर्टी की वजह से थे. यहाँ हम समझेंगे द रेवोल्यूशन डन बाय द लिबरल्स, द लिबरल माइंडेड पीपल और द मिडिल क्लास. रिमेंबर, द एजुकेटेड मिडिल क्लास हु वांटेड टू चेंज द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो अब गवर्नमेंट्स चेंज करना चाहते थे, वो पॉलिटिकल लिबरलिज्म पढ़ा था हमने, गवर्नमेंट बाय कंसेंट. So this was here, specially we are going to read about this, the revolution of the liberals. Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants. On one hand, these type of revolts were going on in different regions of the country, and workers in many European countries in the year 1848. बहुत सारे small revolts हो रहे थे. Not large scale, but small revolts were going on, somewhere by peasants, somewhere by unemployed, somewhere by weavers and somewhere by workers in the year 1848. A revolution led by the educated middle classes was underway. This was a very special revolution. ये एक particular जगह नहीं हुआ. It happened among the middle class everywhere. The liberal minded people of middle class. Events of February 1848. What had happened in 1848 February? France. That instead of constitutional monarchy, France had become a republic, had brought about the abdication of the monarchy. What is abdication? Removal. Louis Philippe had to run away, है ना, तो वो monarch खत्म हुआ था. And a republic based on universal मेल सफरेज. सिर्फ किसे राइट टू वोट दिया गया था? ऑल द मेल अबव द एज ऑफ 21. दे वर गिवन दिस राइट टू वोट. देयर हैड बीन प्रोक्लेम्ड. तो इन February 1848 फ्रांस हैड बिकम अ रिपब्लिक. इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, अब इसी का इफेक्ट हुआ. देखो, अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप where independent nation states did not yet exist. France was a nation state, a complete independent country, but most of the parts of Europe were still under empires, big empires. और वहाँ पर वो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग डिसेंट, अलग अलग रेसेस के लोग रहते थे. द एग्जाम्पल वी हैव रेड अबाउट हेब्सबर्ग एम्पायर. तो वहाँ अब धीरे धीरे रेवोल्यूशन स्टार्ट होंगे, सच एज जर्मनी. Remember, no German nation, only German speaking areas, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, etc. ये अलग अलग एरियाज थे यूरोप के जहाँ पर रेवोल्यूशंस होंगे. Men and women of the liberal middle classes. किसने लाया ये रेवोल्यूशन, ये चेंज? The liberal middle classes combined the demands of constitutionalism,
with national unification. Now you need to understand these two terms, children. क्या डिमांड्स थी लिबरल मिडिल क्लास की? द फर्स्ट वन वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डेमोक्रेसी. अभी तक सब जगह किसका रूल है? द रूल ऑफ द monarch. It is monarchy everywhere. But the liberal middle classes want constitutionalism. The rule of the constitution, that means democracy. तो एक तरफ तो वो democracy डिमांड कर रहे हैं, and on the other hand national unification, making of nation states. That is it. Breaking up of empires, freeing your areas and making nation states. That is national unification. So these were the two demands of liberal middle classes: nationalism and constitutionalism. National unification and constitutionalism. They took advantage of the growing popular unrest. And these middle classes, the educated classes, they also knew that people are not satisfied with what is happening in the country. They are not satisfied with the rule of the monarchs. क्योंकि सब जगह रेवोल्यूशंस हो रहे हैं ना, चेंजेस हो रहे हैं, रिवोल्ट्स हो रहे हैं, पीजेंट्स कहीं वीवर्स, कहीं अनएम्प्लॉयड. सो मिडिल क्लासेस न्यू दैट पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर रूलर्स. सो दे took advantage of this growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state. So now they started demanding the creation of a nation state on parliamentary principles. ये डिमांड स्टार्ट हुई कि अब हमें नेशन स्टेट्स चाहिए, और वो नेशन स्टेट्स क्या होंगे? डेमोक्रेटिक होंगे, बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, where there will be a constitution, freedom of the press and freedom of association. All the freedom, all the rights will be given to the people. ये डिमांड आई अब लिबरल मिडिल क्लासेस से, और एक ऐसा ही स्टेप उठाया कहाँ पर? जर्मनी में. अगेन नो जर्मन नेशन, only the German speaking areas. And out of these German speaking areas, the most important was Prussia. ये नाम हमने पहले भी पढ़ा है, समझा है जब नेपोलियन की डिफीट पड़ी थी. सो Prussia was the most popular, most famous, most powerful German state. In the German regions, जहाँ भी जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, a large number of political associations they were formed. और members कौन थे इनके? middle class professionals, businessmen and prosperous artisans. These were the members of these associations. They called a meeting, a conference at Frankfurt, came together in the city of Frankfurt. They all collected there in Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. Very big step, children. जितने भी जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे वहाँ से ये रिप्रेजेंटेटिव्स आए, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड रिच आर्टिसंस. इनके रिप्रेजेंटेटिव्स दे ऑल कलेक्टेड इन फ्रैंकफर्ट, इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, और वहाँ उन्होंने अपनी एक कॉन्फ्रेंस करी एंड दे वोटेड. मीटिंग में वोटिंग हुई किसके लिए? एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, दैट वी आर गोइंग टू फॉर्म अ जर्मन नेशन. असेंबली बनेगी जो कि जर्मनी बनाएंगे या जर्मन नेशन. अभी तक जर्मनी नहीं है. तो एक तरह से ये क्या बात हुई कि जो अलग अलग एम्पायर्स के अंडर में जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ हैं उन्हें वहाँ से फ्री कराया जाएगा और एक वन यूनाइटेड जर्मन नेशन बनाया जाएगा. दिस वॉज द बेसिक थॉट बिहाइंड दिस कॉन्फ्रेंस. ऑन 18th May, कब हुई ये कॉन्फ्रेंस? 18th May 1848. अंडरलाइन करके रखो. 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स? 831 रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च्ड इन अ फेस्टिव प्रोसेशन. उन्होंने एक बहुत शानदार जुलूस निकाला. दे ऑल मार्च्ड इन अ फेस्टिव प्रोसेशन to take their places in the Frankfurt Parliament
convened in the church of St. Paul. फ्रैंकफर्ट में एक बहुत फेमस, फ्रैंकफर्ट इज़ अ सिटी, एक बहुत फेमस चर्च है, चर्च ऑफ सेंट पॉल. उसमें बहुत बड़ा हॉल है. वहाँ पर ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कॉल की गई थी. तो वहाँ पहुँचने से पहले हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव्स, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने जुलूस निकाला सिटी में, वेंट टू द चर्च ऑफ सेंट पॉल एंड वहाँ जाकर उन्होंने अपनी मीटिंग कॉल करी. कन्वीन्ड मीन्स कॉल्ड in the church of St. Paul. So that is popularly known as Frankfurt Parliament. They drafted a constitution. They made a constitution for a German nation, that there will be a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. Can anybody tell me what do you mean by this? A monarchy subject to a parliament. One name, popular name, we have studied so many times. कौन सा रूल होगा? टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. सारे जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ को फ्री कराया जाएगा. देयर विल बी वन जर्मन नेशन. और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी जर्मनी में? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. दैट इज़ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट. कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, पार्लियामेंट उसको फॉलो करेगी, बट द हेड ऑफ द कंट्री विल बी अ मोनार्क. ये डिसाइड किया गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, the King of Prussia. Prussia was the most powerful German nation at that time. So, in the Frankfurt Parliament, all these 831 members, deputies, they decided to have constitutional monarchy. और वो monarch कौन होगा? ये position, ये throne किसे offer किया गया? Frederick Wilhelm IV, the King of Prussia. उन्हें कहा गया that instead of the king of only Prussia, now you become the king of German nation, a big German nation. ये उन्हें ऑफर किया गया. Naturally, he rejected. He was the monarch, absolute monarch of Prussia. How could he become a constitutional monarch of a country? Constitutional monarch के हाथ में कोई पास नहीं होता है. Who take all the decisions? The parliament. मुनार को सिर्फ उस पर साइन करना होता है या हाँ करना होता है. अभी फेडरिक विल्हेम इज़ द ट्रू रूलर ऑफ हिज कंट्री. सो ही रिजेक्टेड दिस ऑफर एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स. जो दूसरे जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ के किंग्स थे, सब ने मिलकर अपोज किया दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को, इलेक्टेड असेंबली. वाइल द ऑपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, सी रिच क्लास वॉज ऑल्सो अगेंस्ट दिस पार्लियामेंट, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे. डेमोक्रेसी मीन्स रिच क्लास के सारे स्पेशल प्रिविलेजेस फिनिश. सो दे ऑल्सो अपोज्ड दिस. एंड मिलिट्री तो किसकी बात सुनती है हमेशा? सिर्फ अपने किंग की बात सुनती है. वॉट एवर द किंग सेज, मिलिट्री वही सुनती है. तो जब किंग अपोज्ड है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, हाउ कैन आर्मी सपोर्ट? सो द मोनार्क्स वर अगेंस्ट, द एरिस्टोक्रेसी इज ऑल्सो अगेंस्ट, एंड द military is also against this parliament. While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. भी social basis ये होता कि हर social group से, हर social class से ने इसको support किया होता. लेकिन ये parliament सिर्फ किसकी parliament है? The educated middle class, liberal minded people. The aristocracy is against, the military is against. पुअर तो इंक्लूड है ही नहीं इसमें, पुअर पीपल का तो सवाल ही नहीं है. मोनार्की भी इनके खिलाफ है. तो जो एक सोशल बेसिस होना चाहिए था, दैट एवरीबडी इज़ इन सपोर्ट ऑफ दिस, ये ख़त्म हो गया. द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस. सिर्फ किसके मेंबर्स थे इस पार्लियामेंट में? ओनली द मेंबर्स ऑफ मिडिल क्लासेस वर देयर. डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस. क्योंकि मिडिल क्लास थे, बिजनेसमैन थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो इन्होंने पार्लियामेंट में किसकी डिमांड्स को भी इंक्लूड नहीं किया था? वर्कर्स एंड पीजेंट्स की डिमांड को. तो वो भी इनसे अलग हो गए. एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट. नीदर द वर्कर्स सपोर्टेड देम नॉर द पुअर आर्टिसंस. सो इट वॉज ओनली अ पार्लियामेंट ऑफ लिमिटेड क्लास. ओनली वन क्लास, दैट इज educated middle class.
बाकी सारी सोशल क्लासेस ने इसको अपोज किया. इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड. जो किंग थे उन्होंने अपने ट्रूप्स को, हुआ ट्रूप्स, द सोल्जर्स, आर्मी सोल्जर्स, दे वर सेंट टू दिस पार्लियामेंट एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड. और ट्रूप्स भेजकर उन्होंने इस असेंबली में जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स, इन सबको यहाँ से भगा दिया. तो दिस इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. पॉपुलरली हम इसे क्या कहते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. सो चिल्ड्रन, दिस वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट. ये पहली कोशिश थी डन बाय लिबरल मिडिल क्लासेस टू यूनिफाई जर्मनी. उन्होंने कोशिश करी वो लिबरलिज्म का थॉट लेकर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए. दे वांटेड टू हैव अ यूनिफाइड जर्मन नेशन, बट बिकॉज ओनली वन क्लास वॉज इंक्लूडेड इन दिस एंड द अदर क्लासेस अपोज्ड इट, सो इट फेल्ड. तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू यूनिफाई जर्मनी, बट इट फेल्ड. बट एटलीस्ट एक थॉट लोगों के दिमाग में आ चुका था दैट नाउ द टाइम ऑफ मोनार्की हैज़ एंडेड, द टाइम ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की हैज़ एंडेड. एम्पायर्स का टाइम भी अब ख़त्म हो गया है. नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स पीपल वांटेड टू हैव देयर नेशन स्टेट्स. अपने इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ वो बनाना चाहते थे. एंड विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डू दे वांटेड इन दीज नेशन स्टेट? They wanted to have democratic governments with a constitution where the citizens are given all the rights. तो अब देखो धीरे धीरे चेंज आ रहा है वर्ल्ड में. लोगों की थिंकिंग में चेंज आ रहा है और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में चेंज आ रहा है. तो यही तो हम पढ़ रहे हैं अभी, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, हाउ द पीपल आर चेंजिंग. सो भले ही जर्मनी को यूनिफाई करने की, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया, but at least this was the beginning. So this is Frankfurt Parliament or the first attempt to unify Germany. और वैसे भी generally first attempt fails, तभी तो हम जाकर second और better attempt करते हैं. तो that we are going to read next pages how Germany was unified. तो आज बस इतना ही. Go through the lesson and study hard. Till then, keep reading.